پیشین گوئی کی تھی، تو دیکھ لیں اس نے پنپنے نہیں دیا آپ کو. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ 2022 تک اس فوج نے کیا کچھ نہیں کیا، ملک کو دو لخت کر دیا. انہوں نے 40 سال سے ملک کے اندر خانہ جنگی لگا دی، انہوں نے 90,000 بندے شہید کروا دیے، انہوں نے مسلمانوں کو گوانتانامو بے کے اندر ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بیچ دیا. کیا کیا ان کے جو جرائم کی فہرست آپ نکالیں تو کرپشن سے لے کے ظلم سے لے کے جنسی، جو بنگال کے اندر عورتوں کے ساتھ جو انہوں نے کیا، ہماری ماؤں بہنوں بیٹی، کیا نہیں کیا انہوں نے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود مغربی پاکستان میں خاص کر پنجاب کے اندر ان کی 2022 تک 75% اپروول تھی، ان کی مقبولیت. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ایک ادارہ تھا، عبدالکلام آزاد نے پہلے بتا دیا، کیونکہ بندوں کے پاس سیاسی شعور نہیں تھا، ایک منظم ادارہ تھا، اسی کو انہوں نے گلوریفائی کرنا تھا. ٹھیک ہے نا، تو وہ ایک خوف ہوتا ہے نا اندر کا، وہ خوف چونکہ انہوں نے پھر اس کو کلٹیویٹ بھی کیا، آپ کو بتایا کہ آپ کا دشمن بہت بڑا ہے، آپ ہم نہیں ہوں گے تو آپ کو مطلب بلائیں کھا جائیں گی آ کے آپ کے بچوں کو، تو ہم آپ کے سیویئر ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ ساری بکواس سے انہوں نے پراپوگنڈا کیا 70-75 سال، ابھی تک لوگ اس پراپوگنڈے سے نہیں نکل رہے. جیسے وہ انجیکشن نشے کے لگا کے پھینک دے کسی کو تو وہ بندہ اٹھتا ہی نہیں ہے. بالکل. یہ لیکن انہوں نے اوسی بھائی سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، یہ جو چیز ہے یہ انڈیا میں کیوں نہیں ہوئی، یا انڈیا میں انہوں نے کیسے کنٹرول کر لیا اس چیز کو؟ آپ نے میری بات نہیں سمجھی. آپ اس کو نا سی ایم بھائی میوٹ کرے اور بڑے غور سے میرے بھائی اپنی یہ بات سن کے پلے باندھ لیں. آپ اس کو، یہ آپ کو کبھی نہیں بتائے گی. دیکھیں ہمارا جو مسئلہ نا فوج کا، یہ 75% چھوٹا پاکستان تھا، اس میں 70% پنجابیوں کی آبادی تھی، اور فوج جب بنی تھی اس وقت تو 90% پنجابی تھے فوج کے اندر. یعنی کہ پنجابیوں جو فوج کی کانسٹیچوئنسی تھی وہ بہت بڑی تھی مغربی پاکستان کے اندر. انڈیا میں جو فوج تھی اس میں زیادہ تر سکھ ہیں اور صرف 3% تھے. اب 3% سکھ جو ہیں وہ 97% دوسری جو وہاں پہ قومیں تھیں ان کے اوپر مارشاء اللہ تو نہیں لگا سکتے تھے، پہلی بات تو یہ ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ چونکہ ان کو اپروول تھی. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، آپ میں ہمارے باو جداد اس فوج کو اپنا سیویئر سمجھتے تھے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے یہ ڈیموگرافی کا مسئلہ ہے، یہاں اور تھی وہاں اور. 2022 تک وہ 75، اب انڈیا میں تو اب بھی وہ اس کی اپروول نہیں ہے اتنی، انڈین آرمی کی وہ 15-16% سے زیادہ اپروول کبھی ہوئی نہیں ان کی. حالانکہ انہوں نے کوئی ملک نہیں گوایا اپنا، یا کوئی اس طریقے سے کوئی سرحدیں اپنی نہیں گوا دی انہوں نے جسے انہوں نے گوائی، لیکن پھر بھی 15-16% سے زیادہ اپروول ریٹ ان کی نہیں ہوتی وہاں پہ. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے جو باجوہ ہے نا، باجوہ آپ تو پنجابی ہیں میری طرح، جو باجوہ ہے، مثال میں آپ کو دیتا ہوں، باجوے سکھ بھی ہیں، باجوے پنجابی بھی ہیں، ایسی بات ہے نا سی ایم بھائی. جی 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 میں اوسی بھائی ایسے ہی آپ ہے. کی بات بالکل سن رہا ہوں. ٹھیک جی ہے جی نا، ہاں جی تو جی. دیکھیں جو باجوہ سکھ ہے نا وہ ماشاء اللہ نہیں لگا سکتا، باجوہ پنجابی لگا سکتا تھا، اس نے سیک کر دیا آپ کی حکومت کو. تو جو مسئلہ یہ تھا کہ پنجاب اکثریتی علاقہ تھا، فوج پنجاب میں سے زیادہ تر تھی، اور فوج کو پنجابیوں کی حمایت حاصل تھی. تمام تر جرائم کے باوجود پنجابیوں کی فوج ان کو حمایت حاصل تھی، جس وجہ سے ہم مسائل کا شکار ہیں. ٹھیک ہے، اب 2022 میں جو سب سے بڑا تاریخی اعتبار سے نقصان ہوا ہے، یا سب سے بڑی جو تبدیلی آئی ہے، جو انقلاب آیا ہے، اور جس سے انشاءاللہ تعالی پاکستان کا جو ایک آزادی کا سورج ضرور طلوع ہوگا، جو سب سے بڑا اب جو انقلاب آیا ہے کہ ان کی اپروول جو ہے، ان کی حمایت ختم ہو گئی ہے پنجاب کے اندر سے، اور پشتون 30% ہیں. باقی جو دوسری سب سے بڑی فیکشن ہے اس میں 20% پشتون ہے، اور پشتون بھی اب اس حمایت کی کمی ہے ان کے اندر. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا، یعنی یہ پہلی دفعہ انقلاب آیا. اب آگے منزل آسان ہے. ٹھیک ہے، تو منزل اس وقت مشکل تھی جب تمام تر جرائم کے باوجود ان کو 70-80% حمایت عوام کی حاصل رہتی تھی. اس وقت بہت مشکل تھا ان کو ہٹانا کرنا. ٹھیک ہے، پھر یہ پراپوگنڈا کرتے تھے، اپنے جرائم کے اوپر پردہ ڈالے رکھتے تھے، یہ ساری چیزیں ہیں. جی جی ماشاءاللہ زبردست اوسی بھائی. یقین ہے یہ والا پوائنٹ تو کبھی کسی نے بھی ایسا ڈسکس نہیں ہوا، کافی چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں
چلے اللہ تعالیٰ اس میں خان صاحب کو کامیابی دے، انہوں نے ابتدا اب کر دی ہے ہمارا سی ایم بھائی جو جی مسائل ہیں نا ہمارے ملک کے، اب انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ایک بڑی عظیم مملکت بنے گا. اب انشاءاللہ. صرف یہ جو سٹیٹس کو کے چند لوگ ہیں نا، جو 1% شرافیہ جنہوں نے ہمارے وسائل پہ ہماری حکومت کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے، بس یہ ان سے جان چھڑوانی ہے. اوسی انشاءاللہ بھائی انشاءاللہ. اوسی بھئی جیسے آپ کہہ رہے ہو اور ہم لوگ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، تو یہی اداروں کے اندر بہت سارے ہمارے بہن بھائی وغیرہ ہیں جو جس میں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بنیاد کیا ہے، مگر اوپر کے جتنے زیادہ تر ٹولہ ہے نا، اوپر کے جتنا بھی کنٹرول ہے جن کے، یہ کتنے ہوں گے، 1000 2000 یہ میں سمجھ گیا ہوں 3000 لیبر یا بھائی، 5000، تو وہ میری عرض سن لیں، یہ بہت بڑی فالسی ہے. یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا، یہ بہت بڑی فالسی ہے، یہ بہت بڑا مغالطہ ہے. یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ چند ایک اوپر کے بندے خراب ہیں، باقی ساری فوج ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں 1857 سے لے کے آج تک، 1857 میں اس کی پہلی بنگال ریجمنٹ بنی تھی، وہاں سے لے کے آج تک 2024 تک تمام تر جرائم، قتل عام کے باوجود، تمام تر انسانیت سوز مظالم کے باوجود اس فوج میں سے کبھی کسی نے استعفیٰ نہیں دیا. ٹھیک ہے، دیکھیں کتنا ظلم ہوا ہے. میں مثال دیتا ہوں کہ پچھلے 2 سالوں کی آپ مثال لے لیں کہ انہوں نے کس طریقے سے جو معصوم ہمارے پاکستانی مسلمان بہن اور بھائی ہیں ان پہ کس طرح کے ظلم کے پہاڑ گرائے ہیں. انہوں نے نجی جیلوں میں عورتوں کو لے کے ان پر جنسی تشدد کیا، سارا کچھ کیا، ان کی ویڈیوز بنائی. جو باجوہ یا منیرہ مستری آپ کا خیال ہے کہ وہ یہ کر رہے تھے؟ نہیں، یہ نیچے جو ہیں فوجی وہ کرتے ہیں. آپ کے گھر میں اگر آج انہوں نے پاکستان حملہ کروانا ہے تو منیرہ مستری تو نہیں جائے گا نا، فوجی جائے گا نا. تو آیا ان کو نہیں پتا کہ ملک کے اندر یہ روٹی کو چوچی کہتے ہیں؟ ان کو نہیں پتا یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک نوکری ہے نا، اس کے لیے استعفیٰ کیوں نہیں دیتے یہ؟ ٹھیک ہے، کوئی کور کمانڈر دے دے، کوئی بریگیڈیئر، کتنے ہیں مجھے بتائیں جی. یہ اپنی نوکری کے لیے، اپنی پیٹی کے لیے، اپنی مراد کے لیے یہ آپ کی ماؤں بہنوں بیٹیوں تک کی عزت کو پامال کرتے ہیں. تو یہ پلیت ہیں سارے، یعنی نیچے سے لے کے اوپر تک یہ پلیت ہیں، ان میں کوئی پاک نہیں ہے. یہ میری ٹیک ہے ان کے اوپر. جی اوسی بھائی آپ اس کو، ہم اگر اس کو دیکھ لیں تو یہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے، ہم اس کو میدان کربلا میں جو ہوا ہے اس سے یہ ریلیٹڈ ہو جاتی ہے چیز کہ یزید نہیں تھا آیا، وہ تو تخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو جو حضرت امام حسین رضی اللہ کے ساتھ کیے تو وہ اس کے فوجی تھے، سپاہی تھے اس کے ساتھ. بالکل ایگزیکٹلی، بالکل. اب وہ کہیں جی خالی یزید خراب تھا، فوج اس کی معصوم، ایسا تو نہیں ہوتا نا، ایسا نہیں ہوتا. یہ سارے کے سارے ایک جیسے ہیں. جی لیبر بھائی. جی اوسی بھائی میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں بالکل. تو آپ کی جس طرح کی سوچ ہے نا، تو ہم اسی سوچ سے یہی چیزیں سوچ کے بڑے ہوئے ہیں، تو ہماری تو یہ سوچ چینج نہیں ہو سکتی. الفاظ چینج ہو سکتے تھوڑے سے، انداز بیان کچھ اور ہوگا، مگر جیسے آپ بات کرتے ہو میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرا نظریہ بالکل ایسا ہے. اور میرے دوست جو ہے، میں جن کے ساتھ میرا گروپ ہے، جو میرے حلقے کے لوگ ہیں، تو وہ بھی اسی طریقے سے سوچتے ہیں جیسے میں سوچتا ہوں، جیسے آپ سوچ رہے ہیں. تو اسی طریقے سے اور بہت سارے لوگ ہیں جو اسی طریقے سے سوچتے ہیں جیسے ہم سوچ رہے ہیں. تو ہم تو یہ چیز چاہتے ہیں، ہم لوگ اسی طریقے سے سوچتے ہیں. رام بھائی میوٹ کر لے. اچھا لیبر بھائی، جو آپ نے بات کی نا، میں آپ کو ایک یہ بھی بتاتا ہوں کہ ہم میں سے جو بہت ساری فیملیز ہیں نا، انہوں نے ایسا سسٹم ڈیولپ کر دیا ہوا ہے کہ ہمیں نا جو بچے لائک آفٹر انٹرمیڈیٹ یا گریجویشن کے بعد پیرنٹس کو سب سے بڑی جو ان کی ہوتی ہے روزگار کا ہوتا ہے، ان کی جابس کا ہوتا ہے، ان کے کیریئر وغیرہ کی نا فکر پڑ جاتی ہے. ہمارے جاننے والی ان کے نا کیا لے، وہ رینجر میں آفیسر تھے، یا کمال اسما کے صدقے اس کے 3 بیٹے، ایک آرمی آفیسر ہے، ایک ایئر فورس میں، ایک رینجر میں، 3 بیٹے ہیں ان کے. تو میں نے جو ان کی فیملی میں آبزرو کی نا جی، 2 بچے ان کے نا آئی تھنک میڈیکل میں گئے ہیں. ٹھیک ہے، اور 2 نکھٹو تھے، بالکل نکھٹو نہیں ہوتے. میں سوچ رہا یار ان کا کیا بننا ہے. تو مجھے ابھی کچھ ٹائم پہلے پتا چلا دونوں کیپٹن ہیں ابھی.
यार इन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया, ये अपनी फैमिलीज के अंदर ये करते हैं कि जो बच्चा पढ़ गया चले जी वो तो सेटल हो गया, जो नहीं ना कर रहा, जो कुछ भी नहीं कर रहा, आप कहते हैं मेरिट पे होता है आर्मी में मेरिट, भाई नहीं हो, यकीन जाने ये बस ये भी इन्होंने फैलाया हुआ मेरिट पे, मेरिट नहीं होता मेरिट पे कुछ भी, ठीक है। वो भाई सिलेक्शन उन दोनों, जो दो, मैं तो पर्सनली जानता हूँ, उनसे अच्छा मेरा एक बहुत ही अच्छा कौबल दोस्त था, फिजिकली फिट, हर तरह से लिहाज से वो बंदा फिट था, लेकिन सर उसके बाद सिफारिश तगड़ी नहीं थी, वो रह गया और वो उन दोनों की सिलेक्शन हो गई। तो भाई इन्होंने सिस्टम ऐसा डेवलप कर दिया हुआ है, मेडिकल फ्री, इनकी क्या नाम है, इनके प्लाट्स बनते हैं, इनको क्या नाम प्लाट्स दिए जाते हैं, फिर आ जाता है, देखिए हर माशरे के अंदर ना बंदे को चाहिए होता है, उसको हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन, हेल्थ और सिक्योरिटी चाहिए होती है, वो भाई इन्होंने अपने कॉलोनी बनाई हुई होती है, फैमिली इनकी उधर रहती है, फिर हेल्थ इनके अपने मेडिकल्स वो बनाए हुए इन्होंने, फौजी कहीं पर बिल्कुल पता नहीं बिल्कुल ऐसा ही है, यानी कि रियासत के अंदर रियासत एक डेवलप है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये तीन चीज़ें होती हैं किसी भी रियासत में सीएम भाई, एक आपकी तालीम, एक आपकी सेहत, एक आपकी जिसे कहते हैं इज्जत जान माल का तहफ़्फ़ुज़, यानी आपको सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ वगैरह हासिल, मिली आपको। सिक्योरिटी जो है, ये तीन चीज़ें होती हैं बेसिक इंसान की ज़रूरत, रियासत में यही आपको प्रोवाइड वसी भाई, ईरान के ऊपर आपने जो कल रात को बात की थी कि देखो होसी कि भाई, झड़पें ना शुरू हो गई है ईरानी बॉर्डर के ऊपर। तो उसी भाई सबसे ज़्यादा इस टाइम जो धंधा हो रहा है वो तेल का हो रहा है, और तेल के धंधे में सबसे ज़्यादा मुलव्विस हमारे जर्नैल ही है, वहाँ का उधर का कोल्टा का कोर कमांडर है, वो सारी तजारत का काम खुलेआम वो कर रहा है, वो ये स्मगलिंग कर रहा है तेल की ईरान के साथ। जी फिदा भाई आप करें, मैं इसका फिर जवाब। हाँ बहुत ज़बरदस्त लेबर भाई ने बात की, बात मैं और करनी थी, लेबर भाई ने कर दी तो और बात निकल आई। अभी मैंने हैंड खड़ा किया था, यकीन कर लो, पुरकशिश, कमो बेश 21-22 साल उसकी उम्र, नौजवान सोहना सुनक्खा, पंजाबी च मैं थोड़ी जी गल कर लेंदा, तो यकीन पसीनो पसीनी होया, शर्ट भी भिजी है, तो मौसम जहाँ जे बहुत प्यारा सा मौसम है इस टाइम, फिर भी वो पसीनो पसीनी क्योंकि उतराई चढ़ाई आती है ना, ये इस तरह का एरिया है, तो काम ढूंढ रहा है, दर दर की ठोकर खा रहा है वो इंसान। तो मैंने फिर उसको एक आदमी का नंबर दिया, मैं कहा जाकर पता करो, अभी भी काम स्टार्ट हुआ है। यानी कि इस तरह हमारे नौजवान जो है ना, यंग जनरेशन, यकीन कर लो इस तरह धक्के खा रही है इन लोगों को। ये एक इंसान का इन्होंने गिराना है बस, फिर पाकिस्तान ने दुनिया का सुपर पावर भी बन जाना है, इकोनॉमी के लिहाज से इसने चाइना को भी काट देना है अगर इमरान खान खामोश होकर बैठ जाए। ये उन लोगों की सोच है। लेबर भाई ने जो बात की है, परसों जो है ना, दी गार्डन लंदन अपनी अखबार अपना एक आर्टिकल छाया हुआ है उस अखबार में कि मिडल ईस्ट में जो है ना, ईरान ज़्यादा ताकतवर है, अमेरिका नहीं। फिर क्या हुआ, एक दिन के बाद 24 आवर के बाद उसने देखो शाम में 1200 किलोमीटर, इराक 1200 किलोमीटर, तल ऐब 1200 किलोमीटर ईरान से, तकरीबन इतना की सफ़र है इनका, लोकेशन इस तरह की बनी है। तो कल देख लो उसने एक कामयाब अपना फतेह का जो मज़ार अपना उधर क्या कहते हैं हिट किया, उसने शाम पर भी किया, कामयाब रहा, और इराक में मुसाद जो हेड क्वार्टर है उस पर हमला करके उसको तबाह कर दिया है। इससे पहले भी देखो ना, एक तो अखबार के बाद ये फौरी रद्द-ए-अमल आया, ये नहीं, उन्होंने अपनी आवाम को पहले भी बता चुके थे कि बैनर लगाए गए हैं, ट्वीट भी किया गया था कि अपने खफन तैयार रखो। उसने आवाम को, यानी कि ईरान ने कहा है ना कि आवाम का बहुत अपना क्या दबाव था कि आप बदला क्यों नहीं ले रहे हो। अच्छा, दूसरी तरफ वो जो उनका डोना पता नहीं इस तरह का उनका दफाई अपना न्यूक्लियर प्लांट भी था, उसके पास भी अपना लिबनान के मिसाइल गिरे थे, तो किसी रास्ते में किसी टेक्नोलॉजी ने उसको फेल नहीं किया। कल भी ऐसा ही हो, किसी टेक्नोलॉजी ने फेल नहीं किया। तो बात यह है कि हाँ, उसने उस आर्टिकल में एक जो बात ये भी लिखी थी कि अगर
जो इसराइल और हमास की जो लड़ाई है ना, इसमें जश्न तो चाइना और रूस मना रहा है, इस तरह की बातें हुई है। यानी कि अब होसी भाई ये मामला किस तरफ जाएगा? देखो उन्होंने हिट तो करना है, ईरान के ऊपर भी कोई डाउट नहीं कि इसने हिट नहीं करनी है, करना है इसने हिट, ये इसने करके दिखाया, वो सुलेमानी वाला पहले भी बताया है। तो उस उन्होंने हिट करना है, ज़रूरी नहीं कि आज ही हिट करें या कल हिट करें, आखिर प्लानिंग के तहत ही हिट होता है ना हर काम। तो आपकी नज़रों में ये किस तरफ ये जा रहे हैं? सोलह सफाई हो जाएगी कि फिर दूसरी बात, हैरानगी वाली बात कि कल उन्होंने फिर बलूचिस्तान की तरफ भी कर लिया, उधर से हटकर फिर उन्होंने एक और मैसेज छोड़ा कि जो भी मुसलमान मुल्क अमेरिका को फौजी अड्डे दे, कोई हमको कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर उन फौजी अड्डों से अगर फ्लाई अपना अटैक किया गया हम पर, तो फिर हम उस मुस्लिम मुल्क को नहीं छोड़ेंगे। तो अब जो हमारी आर्मी, जो मैं कहता हूँ कि पता नहीं, वो कहते हैं अपनों की मदद होती नहीं है तो गैरों की मदद करने जा रहे हैं, कर रहे हैं। तो ये क्योंकि खमीना तो हमको भुगतना पड़ेगा ना, जैसे पहले भुगत रहे थे 10 साल में। ये हम किस तरफ जा रहे हैं? जी फिदा भाई, हो सकता है मेरा इस पे थोड़ा सा डिफरेंट एंगल है, हो सकता है आप या मेरे यहाँ जितने बहन भाई बैठे हैं इख्तलाफ करें मेरी बात से, लेकिन मेरा एक अपना इस पे व्यू है, एक अपना एंगल है इस चीज़ पे। देखें, अमेरिका चाहता है, उन्होंने एक डेडलाइन दी है अब इजराइल को कि आप आने वाले कुछ दिनों में जो मकासद आपने हासिल करने हैं गज़ा में, आप वो करें और इसको हम सीज़ फायर करें इस चीज़ को, ठीक है। यानी किसी न किसी तरीके अमेरिका नहीं चाहता कि अब ये जंग दोबारा जो मुस्लिम दुनिया है इसमें ये जंग फैले। उसकी वजह ये है कि जैसे आपको पता है सोवियत रशिया किसी ज़माने में कम्युनिस्ट जो रशिया था, कम्युनिज्म का जो ज़माना था जिसे आप सर्द जंग का ज़माना कहते हैं, उसमें अरबों रुपए खर्च के, और MBS जो मोहम्मद बिन सलमान है उसका बयान भी ऑन रिकॉर्ड है कि उसने कहा था कि 60 की दहाई में हमें ये इंस्ट्रक्शन थी अमेरिका की तरफ से, CIA की तरफ से, कि आप ये जो फंडामेंटलिज्म है, आप ये जो बुनियाद परस्ती का इस्लाम है, इसको प्रमोट करें, ठीक है। जिसको बाद में 2000 में जाके जब इन्होंने दहशतगर्दी की जंग लड़ी तो उस वक़्त वो जो इस्लामी जो फंडामेंटलिस्ट जिनको ये कहते थे, या एक बुनियाद परस्त मुसलमान कहते थे, या दूसरे अल्फाज में सच्चे मुसलमान आप कह रहे हैं उनको, उनका कत्लेआम किया और 20 मिलियन मुसलमानों को शहीद किया गया पिछले 20 सालों के अंदर, ठीक है। लेकिन आप देखें कि जिस वक़्त कम्युनिज्म के ज़माने में इनको ज़रूरत थी मुसलमानों की, तो इन्होंने इत्तेहाद बनाया था, ठीक है ना, इस्लाम के साथ इन्होंने इत्तेहाद बनाया था। इन्होंने उस वक़्त ये कहते थे कि हम सारे जो हैं इब्राहिमिक मज़ाहिब हैं, हम अहले अहले किताब हैं। पाकिस्तान में अरबों रुपए खर्चे गए मदरसों के अंदर, मौलवियों के अंदर और फौजियों के थ्रू इन्होंने प्रोपोगंडा करवाया था। आपको याद हो, जो थोड़े से पुराने मेरे बहन भाई हैं उनको पता होगा कि जब सोवियत रशिया की यानी कम्युनिज्म की और अमेरिका की बात होती थी तो हम कहते थे हम अमेरिका के हामी हैं, क्योंकि कम से कम वो अहले किताब ज़रूर है। ये आपने सुना होगा कभी ना कभी ज़िंदगी के अंदर ये प्रोपोगंडा। तो उन्होंने प्रोपोगंडा किया, मुस्लिम दुनिया को इस्तेमाल किया, साथ लगाया, कम्युनिज्म को ख़त्म किया। कम्युनिज्म जब ख़त्म हुआ उसके बाद मुसलमानों का कत्लेआम किया, ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ आ गई। अब अगला उनका टारगेट ये था, अपने मकासद उन्होंने हासिल किए यहाँ से। अगला उनका टारगेट अब ये 2010 से इनकी पॉलिसी है इनसर्कलमेंट ऑफ चाइना की, यानी चूँकि चाइना इन्हीं 20 सालों में जब इन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम किया तो रूस और चीन दोबारा से उभर के बड़ी ताकतें बन चुके हैं। चाइना खासकर बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। तो 2010 में इन्होंने अपनी पेंटागन ने अपनी एक नई पॉलिसी लेके आए थे इनसर्कलमेंट ऑफ चाइना की, यानी कि अब ये जिस तरीके से इन्होंने कम्युनिस्ट रूस के खिलाफ महाज बनाया, सारे इकट्ठे किए मुल्क और उसको पाश किया, इस तरीके से अभी ये सारी दुनिया को इकट्ठा कर रहे हैं, इंडिया को इकट्ठा। आपको उन्होंने इंडिया के इस स्ट्रेटजी के तहत ये नवाज शरीफ भी जो आया ना पाकिस्तान के अंदर, इजराइल और इंडिया के साथ जो आया बाऊ भट्ट, इन्होंने
इंडिया की इजारादारी को तस्लीम करना है, इन्होंने कश्मीर को बैक बर्नर के ऊपर डालना है, इन्होंने सी पैक को वहाँ से रोल बैक करना है, इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर छोटी मोटी प्रॉक्सी करके अफगानिस्तान को की गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना है ताकि चाइना का रास्ता वहाँ से ना गुजरे। ठीक है, बाकी भी पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका इत्तेहाद बना रहा है एंटी चाइना, यानी कि अब उन्होंने चाइना को, इसलिए जो मुसलमानों को अब उन्होंने ये इब्राहिमिक अकॉर्ड इन्होंने किया था अभी पीछे इसी पॉलिसी के बाद 2010 के बाद एक इब्राहिमिक अकॉर्ड इन्होंने किया था जिसके तहत यूएई ने और तमाम मुसलमान ममालिक ने इसराइल को तस्लीम करना शुरू कर दिया था। ठीक है, उसके बाद अभी सऊदिया ने करना था, सऊदिया के बाद पाकिस्तान ने करना था, जैसे इमरान खान साहब के ऊपर दबाव था, जैसे बाजवे ने ये डील की थी। ठीक है, कर वो कह रहे थे कि चूंकि मुसलमानों का तनाज़ा हमारे साथ इसराइल की वजह से, तो इनको सेटल करें, इनको साथ लगाएं, साथ लगा के चाइना जो है, चाइना को इंसर्कलमेंट करें और चाइना का अंजाम वही करें जो हमने सोवियत रशिया का किया था, वहां से देने। तो इसका मतलब है कि ये जो मिडल ईस्ट की जंग है फिलहाल उनके इंटरेस्ट में नहीं है। ठीक है, हमास ने इनका निज़ाम ख़राब कर दिया, इनके मकासद पूरे नहीं होने दिए उन्होंने, वरना अब तक पाकिस्तान भी शायद इसराइल को कबूल कर चुका होता। लेकिन वो चाहते हैं, अब पेंटागन ये चाहता है कि ये जल्द अज जल्द अपने मकासद हासिल करें, हम सीज़ फायर करें, सीज़ फायर करने के बाद जो हमारा ग्रेटर प्रोग्राम है इन सर्कलमेंट ऑफ चाइना का, हम उसकी तरफ जाएं। ठीक है, तो इस वजह से यानी कि ये मेरा इसके ऊपर टेक है। मैं नहीं समझता कि ये जंग, हाँ इसमें कोई दूसरे एलिमेंट ना आ जाए, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये जंग प्रूव, हाँ चाइना ज़रूर चाहता है इसमें। इंटरेस्टिंग, मैं एक और बात आपको पता, चाइना चाहता है कि ये मिडल ईस्ट में जंग फैले। जी ओवर टू यू भाई। जी लेबर भाई। ये सारी खामोश हो गए हैं। फिदा भाई, लेबर भाई बिजी है। लेबर भाई बिजी हो गया, चलो कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता, बात भी सुनी है उसने, मैं जो सवाल किया था उसने तो। और सीएम भाई कैसी हल्के की कैसी सिचुएशन जा रही है आपकी? औसी भाई हल्के की सिचुएशन तो ऐसी है, आपको पता है, मैं जो ये पंजाब का, सेंट्रल पंजाब का इलेक्शन है ना, इधर ये मीडिया पे न्यूज नहीं आ रही। वो पता है, जो मेन इनके कैंडिडेट है ना, एहसन इकबाल है, आपको पता होगा। एहसन इकबाल और दानियल अजीज का बड़ा पंगा था सीट, तो उन्होंने, एहसन इकबाल ने फटा डाल दिया, उसने कहा मैंने दोनों सीटों से इलेक्शन लड़ना है, अपनी सीट से और शायद एक और सीट से, और दानियल अजीज उठाना पड़ा इनको। ये अभी क्या करें, जो इनके मेन कैंडिडेट है ना नून लीग के, जैसे एहसन इकबाल हो गया, हाजा असफ हो गया, साद रफीक हो गया, और यानी जो मेन मेन है हनीफ अब्बासी, इनके हलकों में आपको पता है कुछ अच्छे डाई हार्ड वर्कर होते हैं यूनियन काउंसिल के अंदर, वो जो अपने नीचे तकरीबन वो एक बंदा ऑलमोस्ट 6 से 7 गांव कवर करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एडजस्टमेंट नीचे ऐसी होती है यूनियन काउंसिल के हद तक कह रहा हूँ। ये क्या कर रहे हैं, उन हलकों से वो बंदे उठा रहे हैं। मैं एक बंदे को जानता हूँ, वो इस के हलके से है, ये बगैर जो है फरदोसा शकवान ना, तो है तो वो साद वली के बड़ा, जो हमारे एक एमपी हैं पीटीआई से, सूबाई असेंबली के लिए, वो इसके हलके से हैं फरदोसा शकवान से। उसने क्या किया, जितने बंदे हैं जो मेन मेन यूनियन काउंसिल के बंदे हैं, सबके घरों पे छापे डलवाए हुए हैं। ठीक है, वो बंदे सर अपने घरों में नहीं आ रहे। तो ये अपने मेन बंदों के जो हल्के है ना, उधर तो इन्होंने इतनी ला कानूनीयत फरौनीयत अपनाई हुई है, हद है उस चीज की। और उन बंदों के ऊपर इन्होंने पर्चे भी दागे हुए हैं, और ऐसे सिविलियन के ऊपर इन्होंने दहशतगर्दी के पर्चे दाग दे हुए हैं, यानी कि पाकिस्तान के साथ गद्दारी के, वो तक आम बंदों के ऊपर इन्होंने पर्चे डाल दिए हुए हैं। ठीक है, वो बंदे बेचारे ऐसे हैं जो तकरीबन आई थिंक इस वक्त दो तीन तीन महीने हैं वो बेचारे कभी इधर उधर, लेकिन फिर भी वो हान के लिए डटे हुए हैं। अभी एक भाई, पता नहीं वो, मैं एक ब्राड पे बैठा हूँ तो मैं नाम भी उनका लेता, उन्होंने पता किधर से न्यूज फेंक दी कि जी अभी तो सिर्फ वही बंदे हैं जेलों के अंदर जो जमान पार्क के बाहर बैठे हुए थे। और भाई ऐसी बात नहीं है, आपके जो लाहौर से, लाहौर की सियासत से बाहर भी निकलो, जब ये मसले और सारा कुछ हल होगा ना,
जब सब चीजें नॉर्मल होंगी, तब आपको पता लगेगा जो इन्होंने गंद किया है नीचे। ये तो जो गंद हमें सुनने को या देखने को मिल रहा है ना, ये 10% है। अभी 90% आना बाकी है। जब मामला ठीक होंगे, बहुत इन्होंने गंद किया सर, बहुत ज्यादती की है इस बार तो उन्होंने। मैं कहता हूँ कंपनी ने ना, और साथ पता है क्या, इस बार ये हुआ कि कंपनी के साथ ना ये नवाज गंजा भी मिल गया। नवाज गंजे की शहबाज शरीफ का इतना होल्ड है पंजाब सेक्टर के अंदर कि इनके एसपी, थानेदार, डीसी इनके मर्जी के लगते हैं। मैं अब 4 जिले जो है ना, उधर जो शहबाज शरीफ के जो मेन बंदे हैं, खाजा आसफ है, एक साद रफीक है, एहसन इकबाल है, एक और इनका, मुझे नाम उसका भूल गया, वो सबसे पहले काम ही यही करते हैं। जब भी वो पावर में आते हैं, सबसे पहले ये अपने डीसी चेंज करवाते हैं, अपनी मर्जी के डीसी लेके आते हैं। फिर वो अपनी डीसी के थ्रू ये हर किस्म की लाकानूनीयत, हर किस्म का काम करवाते हैं जिले के अंदर। ये जो उस्मान डार की वालदा के साथ किया था, ये डीसी इसका पालतू है हाजी आसम का। ये स्पेशली इसको लेके आया था अपने काम के लिए कि इस तरह का काम मैंने अपने जिले के अंदर करवाना है। और उस डीसी ने अपने नीचे जितने वो एसएचओ थे, उसने अपनी मर्जी के रखे हुए थानों के अंदर। तो इन्होंने बड़ा, इलेक्शन में भी इन्होंने बड़ा गंद डाला। मैंने कल एक, परसों मैंने एक ब्रॉड पे बात की थी कि मुझे ये एक न्यूज मिली है कि ये क्या करने जा रहे हैं पंजाब के अंदर। इलेक्शन वाले दिन पोस्टर ऑलरेडी छप गए हैं। क्या आपको पता है जो इलेक्शन के पॉइंट्स होते हैं ना, इलेक्शन बूथ होते हैं, मोस्टली वो गवर्नमेंट स्कूल्स के होते हैं, बॉयज और गर्ल्स स्कूल्स होते हैं। आप अगर उनकी जरा स्ट्रक्चर देखें ना, बॉयज और गर्ल्स स्कूल्स का जो गवर्नमेंट के बने हैं, वो इस तरह होता है कि 2 कमरे होते हैं, फिर ग्राउंड होती है, फिर मेन गेट होता है। इन्होंने इस दफा क्या करना है कि जो मेन गेट है ना, उसके ऊपर बड़े बड़े स्टिकर आवेजा होंगे इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से कि आप लोगों को अंदर मोबाइल लेके जाने की इजाजत नहीं होगी, और अगर लेके जाने तो आपको स्विच ऑफ करना पड़ेगा। ये सर इसीलिए किया जा रहा है ताकि लोग मोबाइल फोन ना अंदर लेके जा सके, सिर्फ और सिर्फ ये अपना गंद कर ले। ठीक है, मुझे पता है ये इलेक्शन वाले दिनों पे जब बंदा अंदर इंटर करता है ना, मेन गेट एंट्री करता है, तो आगे 3 ही बंदे होते हैं, नुमाइंदे होते हैं, एक पीटीए का होगा या जी जी, पोलिंग। हाँ जी, पोलिंग एजेंट, वो एक पीटीए का होगा, एक नून लीग का, पीपल्स पार्टी का। वो तीनों खड़े होते हैं। ठीक है, बाहर से बंदे अपनी पर्ची बनवा के लाते हैं अपने अपने बंदों से, अंदर आते हैं वो, फिर उनकी पर्ची चेक की जाती है, नंबर बताया जाता है, वो जी कहता है जाके वोट डाल लो। मैं इधर जो बात कर रहा हूँ, जिधर धांधली होती है, वो होती है जब आपका ना जो वोटर आना है +60, जिनकी 60 साल से ज्यादा उम्र है ना, हमारा जो 58 लिटरेसी रेट है, उसमें तकरीबन सर ऐसे लोग हैं जो सिर्फ पढ़ना लिखना जानते हैं। ठीक है, बहुत सारा ऐसा वोटर है जो उर्दू भी नहीं हमारे पढ़ सकते, तो उनको ना किसी हेल्प की जरूरत पड़ती है। ये हरामजादों ने ये काम भी करना है कि इस दफा जो ऐसा वोटर होगा, उसके साथ ये किसी को अंदर नहीं जाने देंगे। वो बैलेट बॉक्स जो होता है ना, जिधर स्टंप लगाते हैं, वो जो ऑफिसर उठेगा, जो उसकी हेल्प करने के लिए उठेगा, वो हरामजादा या तो दरमियान में स्टैंप लगाएगा, ये वोट जाया करेगा, या किसी और पे लगा देगा। मैं जो बात कर रहा था, ये चीजें हाईलाइट होनी बहुत जरूरी है। और एक और बात, कल इस जफर भाई ने भी इस मुर्शद भाई आए थे, मैंने उनसे ये सवाल किया था एक ब्रॉड के ऊपर, तो उन्होंने कहा हाँ ये न्यूज भी ऐसा ही है। पाकिस्तान के अंदर जितनी एम्बेसीज है, पाकिस्तानी जो कौंसलेट है, पाकिस्तान एम्बेसीज, वो इंटरनेशनल मीडिया चैनल्स के कैमरामैन को, स्पोक्स पर्सन को, वो जो उनके होते हैं एफिलिएशन जो पर्सन होते हैं, उनको वीजा ये जानबूझ के नहीं दे रहे, नहीं देने। इन्होंने कोशिश करनी है कि इंटरनेशनल मीडिया को पाकिस्तान इलेक्शन की एसेस ना दी जाए, एनओसी नहीं दे रही है ये। फिर हाँ बिल्कुल ऐसा ही बात है सीएम भाई। तो ये तो अब वक्त बताएगा, वक्त फैसला करेगा, बात फिर वही आकर ख़त्म हो जाती है कि इंशाल्लाह ताला हर चीज़ हमने फेल की है, सब कुछ पता है। कोई, मैं कहता हूँ कि
जब इसकी सियासी अपना सियासत में जब खान साहब आया तो मैं सबको पता है यार, कोई कहता था ये एक सीट नहीं जीतेगा, ये 6 सीटें भी एक टाइम में जीत कर दिखाई है 7 में से, कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन ये 8 फरवरी वाला जो है ना, ये भी इंशाल्लाह ताला वैसे भी गलत अंदाज़ा होगा जिस तरह पिछले 2 सालों से उनके गलत अंदाजे थे। तो दूसरी बात ये हौसी भाई की मैं मुकम्मल मैं काम पर होता हूँ यार, मैं कोई बात का तवाज़न को सीधा नहीं रख सकता। हौसी भाई की मैं बात सुन सकता हूँ लेकिन बोल नहीं सकता जब कस्टमर होते हैं। अच्छा, वो हौसी भाई की मैं टोटल बात मैंने बिल्कुल फॉलो किया है और बिल्कुल जवाब भी मिल गया है। लेकिन एक बात का जवाब बिल्कुल ही हौसी भाई से नहीं मिला, वो इसलिए, ठीक है चाइना तो खुश है मिडल ईस्ट में, रूस भी खुश है और इनका पूरा पैनल खुश है। लेकिन एक बात और भी इसमें आ जाती है, आपने कहा सर के नवाज शरीफ लाया गया इस मकसद के लिए, सी पैक को बैक रोल अफ़गानिस्तान में थोड़ा सा इस तरह जो भी आपने कहा, हाँ, लेकिन इसमें साले एक सवाल ज़रूर पैदा होता है। अगर हम जैसे लोगों को पता चल गया है, आपने बात को हम आगाह कर दिया है, आखिर इन चीज़ों का तो चाइना को भी इल्म होगा ना। तो फिर देखो, सी पैक ऐसे ही समझो कि चाइना की इकॉनमी के लिए भी रीढ़ की हड्डी है, पाकिस्तान के लिए भी रीढ़ की हड्डी है। उनकी भी आवाम गुर्बत में अभी एक तक है, सारी आवाम को गुर्बत में वो भी नहीं निकाल सके। हमारी तो वैसे भी आपके सामने मिसाल है कि अगर उनको सब पता है, हर ये जैसे आप बता रहे हो कि उनका जो उन्होंने 42 अरब डॉलर खर्च किया है, कोई छोटी सी रकम नहीं होती। तो अपना मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर वो सी पैक को फॉलो बैक कर देंगे तो जिस मकसद के लिए चाइना इतने सालों से वो लड़ रहा है, अपने आप को मजबूत किया है इकोनॉमी के लिहाज से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से, तो फिर तो वो सब ज़ाया हो जाएगा। जब उसका ख्वाब जो उसने एक देखा हुआ है सुपर पावर का, बहुत अधूरा रह जाएगा। इस पर भी थोड़ा सा फिर हमको वजाहत कर दो, फिर वो क्यों नहीं पाकिस्तानी सियासत में दखलंदाज हो रहे। असल में फिदा भाई, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल आपने किया है। ये हम इस पे पहले भी एक आध दफ़ा डिबेट कर चुके हैं, यहाँ पे फ़हीम भाई भी थे, उनके साथ भी हमारी डिबेट हुई। बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल आपका, यानी कि ये बेस्ट क्वेश्चन है आज का। देखिए, जो चाइना है, मैंने शायद इस पे पहले भी बात की थी, चाइना जिस तरीके से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को वो डील करता है, उसका तरीक़ेकार थोड़ा सा मुख्तलिफ है अमेरिका के तरीक़ेकार से, ठीक है ना। अमेरिका मुल्कों के अंदर मुदाखलत करता है, ठीक है ना, इक़्तिसादी तौर पे, यानी वर्ल्ड बैंक के ज़रिए, IMF के ज़रिए इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगा के, टेक्नोलॉजी की पाबंदियाँ लगा के, या उसकी जो इत्तेहादी हैं उनके ज़रिए आपके जो मुआशी जो एक्सपोर्ट करते हैं आप उनके मुल्कों के, उसके ऊपर पाबंदियाँ लगा के, ठीक है ना। हो तो फिर उन्होंने मुल्कों के अंदर, जहाँ तक जैसे मुर्सी को कत्ल करवा दिया, जैसे ईरान के अंदर डॉक्टर मुसद्दक को इन्होंने असैसिनेट करवाया, ठीक है ना। मतलब मोटी मोटी मैं मिसालें आपको देता हूँ, जो कि इन्होंने बाद में CIA के अब डीक्लासिफाई हो चुके हैं डॉक्यूमेंट्स, यानी कि वो मंजर आम पे आ चुके हैं, वो छुपी चीज़ें नहीं हैं। यानी कि ये मुल्कों के अंदर भी बराह रास्त जैसे करता है मुदाखलत। जैसे इमरान खान को इन्होंने डायरेक्ट धमकी दी आपको, जैसे गली का एक गुंडा धमकी देता है, इस तरीके से धमकी इन्होंने दी, ठीक है ना। ये इनका तरीका वारदात है, अमरीकियों का ये तरीका वारदात है। चाइना का तरीका वारदात मुख्तलिफ है, ठीक है। चाइना ये करता है कि एक मुल्क के अंदर किसी भी वक्त जो पावर को ग्रैब करने वाले या जो इक़्तिदार के हसूल के लिए 2, 4, 6, 8 जमातें या ग्रोह मुतखारब आपस में लड़ रहे होते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही होता है, कोई भी आप मुल्क ले लें, उसमें 2, 4 सियासी जमातें होंगे, 2, 4 धड़े होंगे, आपस में लड़ते हैं। तो चाइना इनमें इंटरवीन नहीं करता, ठीक है, इनमें मुदाखलत नहीं करता। जो धड़ा जीत के ऊपर आ जाता है, चाइना उसके साथ डील कर लेता है, ठीक है। वो एक बड़ी मशहूर किताब भी है और उसमें फ़िल्म भी बनी है, गॉड फादर। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को गॉड फादर कहा, तो बड़ी मशहूर, यानी हॉलीवुड की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली फिल्मों में से एक फ़िल्म गॉड फादर, और मेरी भी बड़ी फेवरेट फिल्म है। उसमें एक बड़ा खूबसूरत वो डायलॉग जो है वो कहता है, जो गॉड फादर होता है, उसके पास वो क्लाइंट आता है कोई प्रॉब्लम लेके, तो वो कहता है यार ये वो तो बहुत बड़ा आदमी है, तुम उसको को मानेगा नहीं तुम्हारी बात। तो वो कहता है मैं उससे ऐसी ऑफ़र दूंगा जो वो इनकार ही नहीं कर सकेगा मेरी ऑफ़र का, यानी मैं उसको ऑफ़र ही ऐसी दूंगा। ये बड़ा स्ट्रांग डायलॉग था उसका।
تو یہ چائنا کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو اوپر آ جاتا ہے اس کے ساتھ سے ایسی ڈیل کر دیتا ہے کہ وہ انکار ہی نہیں کرتا. مثال کے طور پہ دیکھیں آپ کے ملک میں مشرف کے ساتھ چائنی گڈی گڈی تھے, میں زیادہ پیچھے نہیں جاتا, مشرف کے دور سے آپ لے لیں, مشرف کے ساتھ اچھے تھے. زرداری آیا, زرداری کو انہوں نے کلٹیویٹ کر لیا. اس کے بعد جب یہ نوازا آیا, نوازے کو کلٹیویٹ کر لیا. فوجیوں کو بھی ساتھ میں انہوں نے کلٹیویٹ کر کے رکھیا. عمران خان صاحب آئے, عمران خان کو بھی کلٹیویٹ کر لیا. اس کی چھوٹی سی مثال آپ کے ملک میں راجہ ریاض کی لے لیں. جیسے ہی جو پاور میں آتا نا راجہ ریاض اس کو کلٹیویٹ کر لو, اس نے عمران خان کو بھی کلٹیویٹ کر لیا تھا. ٹھیک ہے, یہ طریقہ واردات ہے چائنا کا. ٹھیک ہوگی بات. تو اس لیے چائنا نے ابھی تک آپ کے ہاں مداخلت نہیں کی, کہ وہ کہتا ہے اگر نواز شریف آئے گا میں نواز شریف کے ساتھ ڈیل کر لوں گا, زرداری آئے گا زرداری کے ساتھ ڈیل کر لوں گا, کوئی مولوی آگے مولویوں کے ساتھ ڈیل کر لوں گا, اوپر فوجی آگے فوجیوں, کیونکہ یہ تو کک بیک ہی لینی ہے انہوں نے, یا ان کو کک بیک دے دیں, رشوت دے دیں تو یہ راضی ہو جاتے ہیں. یا عمران خان جیسا بندہ ہے اس کو ویسے کوئی پروجیکٹ دے دیں تو وہ پروجیکٹ سے خوش ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا سر, میں اس کے جواب پر مطمئن ہو گیا ہوں. لیکن اس کے ایک بات سن لیں, ایک بات سن لیں, بڑی کام کی بات ہے یہ, سن لیں. لیکن اب یہ طریقہ کار بہت سے ملکوں کے ساتھ ساتھ پاکستان میں امریکہ کا یہ جو واردات ہے, طریقہ واردات اب چل نہیں سکتا, اب نہیں چلے گا. اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی سن لیں ذرا. دیکھیں آج تک جو چائنا کے تعلقات پاکستان کے ساتھ رہے, ٹھیک ہے, پینٹاگان یا واشنگٹن چاہتا تھا کہ چائنا کے تعلقات, پاکستان کے تعلقات چائنا کے ساتھ رہیں, کیونکہ جب سوویت زمانہ تھا اس زمانے میں سوویت یعنی چائنا اور روس کے اتحاد کو توڑنے کے لیے پاکستان کو استعمال کیا گیا. ٹھیک ہے نا, شینو سوویٹک بلاک کو توڑنے کے لیے پاکستان کو استعمال کیا گیا. ہنری کسنجر کا جب آیا مری سے وہ جہاز میں گیا, وہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو, ساری کہانی آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہوگی بات. تو اس وقت یعنی کہہ لیں کہ امریکہ کا اور پاکستان ایک ہی پیج پہ تھے چائنا کے تعلقات کے حوالے سے. اب جیسے 2010 کے بعد یہ پالیسی انہوں نے بنا لی ہے, انہوں نے اب وہ جیسے جارج بش کی ایک بڑی مشہور تقریر تھی نا کہ جو جب یہ دہشت گردی کے حملے ہوئے 9/11 کے, تو اس نے کہا تھا کہ either you are with us either with them, یعنی یا تو تم ہمارے ساتھ ہو یا ان کے ساتھ ہو, درمیانی راستہ کوئی نہیں ہے. جو انسرکلمنٹ آف چائنا, انسرکلمنٹ آف چائنا کے اب چاہے وہ نواز شریف ہے, چاہے وہ زرداری ہے, چاہے آپ کا کوئی فوجی کتا ہے, ٹھیک ہے نا, ان کو اب یا تو یہ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, امریکہ ان کے لیے اب چوائس نہیں چھوڑے گا ان کے لیے, میری بات سمجھ رہے ہیں نا, ان کے لیے اب چوائس نہیں چھوڑے گا, یا تو یہ ادھر کھڑے ہوں گے یا ادھر کھڑے ہوں گے. تو اس میں تو آپ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ فوجی کتے تو ظاہر ہے ان کے پالتو ہیں, ایسٹ انڈیا کمپنی کے پالتو کتے ہیں, وہ تو ادھر ہی جائیں گے. ٹھیک ہے, اور یہ نوازے کی پراپرٹی بھی ادھر ہی ہیں, اس کے بال بچے سارے انڈے بچے ادھر ہیں, اس نے بھی ادھر ہی جانا ہے. زرداری کا بھی سارا مال سباب ادھر پڑا, یہ تو سارے ادھر ہی جائیں گے. ٹھیک ہے, اگر کوئی اس خطے کے اندر پاکستان کے اندر چائنی مفاد کو تھوڑا بہت پروٹیکٹ کر سکتا ہے یا پاکستان کی خارجہ پالیسی کو تھوڑا بہت بیلنس کر سکتا ہے, تو وہ صرف عمران خان ہے. ٹھیک ہے, ابھی چائنا کو شاید اس بات کی ریئلائزیشن نہیں ہے, لیکن آنے والے دور میں چائنا کو اس کی ریئلائزیشن ہوئے گی. جب ہوئے گی تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ اسٹریٹجی چینج کرنی پڑے گی, یعنی کہ مداخلت کرنی پڑے گی. جو ایک بندہ میری پالیسی کو بیلنس کر سکتا ہے, مجھے آؤٹ آف دی باکس جا کے اس کو سپورٹ کرنا پڑے گا, لیکن ابھی تک ان کی پالیسی نہیں ہے. جی فضا بھائی, اوور ٹو یو. جی زبردست, میں مطمئن ہوں, کیونکہ اس لیے مطمئن ہوں کہ آپ نے جو چائنا کی باتیں کی ہے, کوئی شک نہیں ہے کہ آپ, اگر میں آپ سے صرف امریکہ کے بارے میں پوچھوں, آپ مجھے ایک سوال کا پوچھو, آپ مجھ کو 10 جواب دے سکتے ہو, 10 بار آپ مجھ کو مطمئن کر سکتے ہو, کیونکہ امریکہ کی واضح پالیسی ہے, کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں. چائنا کی انڈر گراؤنڈ پالیسی ہے, صرف ایک اندازے کے سوا اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں مطمئن ہوں, لیکن بات ٹھیک ہے مان لیتے ہیں, بات دراصل یہ ہے کہ جب کوئی دشمن کا دوست بننا چاہ رہا ہو تو وہ اس کا دورہ کرے, اور اس کی دورے کے بعد فوری دوسرا دشمن اس طرح اس کو ریئیکٹ کرے کہ اس کو کالر سے پکڑ کر نیچے اتار دے, اور تم ہو وہ دوست دشمن بھی پاور والا, تو اس کا یعنی کہ ایک بیان اس نے ضرور دیا ہے پونٹن نے, یہ کوئی شک نہیں, ان کا میڈیا نے کافی باتیں اٹھائی ہے. لیکن اب سب کو پتہ ہے کہ جس طرح چائنا کی اپنا امریکہ کی پالیسی واضح ہے, روس کا بھی سب کو پتہ ہے, ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. وہ تو برائے نام لے کر, حوثی کا نام لے
देकर बोलेगा कि ये मेरा आदमी है, इसको कहना कुछ नहीं वरना मैं तुझको हिट करूँगा, वो तो इस तरह का इंसान है। तो रूस भी क्यों नहीं दखल अंदाजी कर रहा है? क्योंकि ये मैं अपने पाकिस्तान के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये उन लोगों की जो प्लानिंग है उनको कामयाबी तब भी है अगर उनका जनूबी एशिया में जो इत्तेहादी बनाते हैं, हम इत्तेहादी है ना, दोस्ती निभा रहे हैं इतने सालों से अमेरिका की, या दोस्ती कर लो या वफादारियाँ कह लो, जो कुछ मर्जी नाम दे दो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अच्छा, तो जब तक उनका जहाँ से असर रसूख पाकिस्तान से ख़त्म नहीं होगा, तो आपको नहीं लगता कि रूस भी खतरे में है, चाइना भी खतरे में है, ईरान भी खतरे में है? लेकिन ईरान को एक साइड में रख लो, दो बड़ों की बातें कर लेते हैं, फिर वो रूस क्यों नहीं इसमें इंटर हो रहा है पाकिस्तानी सियासत में? हत्ता तक वो ट्रंप की सियासत में भी इंटर हो चुका था, वो आपने भी पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है। शाम की हुकूमत में बशार अल असद की हुकूमत भी फॉर एग्जांपल आपके सामने है, ईरानी हुकूमत की फॉर एग्जांपल आपके सामने है। वो तो यानी कि बिल्कुल, हाँ वो चलो ठीक है, वो पुरानी बातें होंगी, शायद मैं 2022 की बात करूँगा। सबको याद होगा कि आर्मीनिया और अजरबैजान की, जब खान साहब ने अजरबैजान को सपोर्ट किया, आर्मीनिया को तो अब सपोर्ट इसीलिए नहीं कर सकते, मानते ही नहीं है, लेकिन उसने वज गज कर वो क्या कहते हैं आर्मीनिया की सपोर्ट की, पाकिस्तान को भी खतरे में मोल लिया और भी तुर्की जैसे मुल्कों को भी खतरा मोल में ले लिया था। मेरा मतलब कहने का यही है सवाल कि चलो ठीक है, चाइना की पॉलिसी इस तरह की, उसकी नेचर इस तरह की है, लेकिन रूस की नेचर तो सबको वाज़िह है कि पुतिन इतना सख्त होने के बावजूद भी। सीधा भाई, अब मैं सवाल आपका आ गया, मैं जवाब दे देता हूँ इसका, मैं समझ गया हूँ। देखें, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप देखें जिस तरीके से अमेरिका सारी दुनिया के ममालिक के अंदर मुदाखलत करता है, लेकिन आज तक ईरान में जब से ईरानी इनकलाब आया है, ठीक है, तो ईरानी इनकलाब से बाहर अब तक किसी कामयाब तरीके से उस पर असरअंदाज नहीं हो सका अमेरिका, ठीक है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब ये पीछे इस पे इक़्तिसादी पाबंदियां हटाई गई थी थोड़े अरसे में, ठीक है ना, और ट्रंप ने दोबारा आके वो लगा दी थी इसराइल के दबाव के ऊपर, तो उस वक़्त यहाँ एक अमेरिका का बहुत मशहूर जरीदा है टाइम मैगज़ीन, उसमें एक आर्टिकल छपा था जिसमें उसने कहा, चूँकि पाबंदियाँ हट गई, इनके जो जहाज़ थे आने जाने लग पड़े, लोग आने जाने लग पड़े, ठीक है, टूरिज़्म डेवलप होने लग पड़ा, अमरीकी आएंगे, ये आएंगे, फलाने आएंगे यहाँ पे। तो उस टाइम मैगज़ीन में उसने थोड़ा सा इसका जायज़ा लिया और उसमें उसने ये बात बताई कि अब अमेरिका का यहाँ पे ईरान में चूँकि आना जाना इनका शुरू हो गया है, तो इनका इन्फ्लुएंस जो है ना, यानी इनका असर और रसूख इसमें ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। ये ईरान में फील्डिंग लगाएंगे अपनी, ठीक है ना, NGOs बनाएंगे, इनके सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के अंदर, इनके मीडिया के अंदर ब्राइब करेंगे लोगों को, जिस तरीके से ये रिश्वत दे के जैसा हमारा ये करते हैं, ठीक है ना। तो ये अब इसमें असरअंदाज होना शुरू हो जाएंगे, ठीक होगी। वो नहीं हुआ, उन्होंने पाबंदियाँ दोबारा लगा दी और वो वहीं पे सिलसिला रुक गया। देखें, जो चाइना है और जो अमेरिका है, चाइना और अमेरिका के असर व नफूज पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, उनकी बड़ी ज़्यादा फील्डिंग लगी हुई है, इसलिए अमेरिका भी असरअंदाज पाकिस्तान पर डायरेक्ट होता है। और चाइना को तो मैंने आपको बता दिया कि चाइना की पॉलिसी मुख्तलिफ है, ठीक है ना, और चाइना अगर डायरेक्ट भी असरअंदाज होना चाहे वो हो सकता है, लेकिन चूंकि उनके पास जो रूस है ना, रूस का मामला पाकिस्तान के साथ बड़ा मुख्तलिफ है, ठीक है। जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, आप तकरीबन 2023 तक एंटी रूस कैंप में ही रहें, ठीक है। आप कभी उस तरीके से रूस के साथ आपके तल्लुकात बन नहीं सके, उस तरीके से रूस के साथ आपके मामलात नहीं बने, और वो आपकी सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के अंदर, आपके मीडिया के अंदर, आपके लोगों के अंदर उस तरीके से NGO वगैरह ये वो भी यही काम करता है, ठीक है। वो है नहीं है, उसकी प्रेजेंस नहीं है, यानी रूस की पाकिस्तान में असर अंदाज हो उस तरीके खोना चाहता है वो, लेकिन उसकी उस तरीके से नफूज पजीरी नहीं है, ठीक है ना, पेनिट्रेशन नहीं है। दैट्स वाई। जी, ओवर टू यू। जी, ये मैं बिल्कुल तुम्हारी आपकी बात पर 100% मैं एग्री भी हूँ, मुतमिन भी हूँ, लेकिन जो चाइना वाली बात है, ठीक है, वो कोई भी इंसान इस तरह का सवाल जवाब बहुत मुश्किल देता है। हो सकता है इस कि उसने पाकिस्तान को के लिए पता नहीं क्या क्या खान के लिए किया हो, तो हमारा इलेक्ट्रॉन का बिल्कुल ब्लैकआउट है। तो क्योंकि जब वो अब ये भी पता है, जब दो पाकिस्तानी थे अमेरिकन, पाकिस्तान में अखबार में भी यही आया था, तो जो नवाज शरीफ का मशीर था
पता नहीं ये बता दूंगा मैं ना हाँ हसन इकबाल, तो इसने बोला कि इससे हमको आईटीटी के शोबे में हमको क्या फ़ायदा होना। बिल गेट्स के पास टाइम कम था, वो मोदी को पास चला गया, मोदी एक चाय बेचने वाला था तो उसने सीने लगा लिया कि आ जाओ, क्योंकि उसके मशीर अच्छे थे। हो सकता है इन लोगों ने कोशिश की हो, लेकिन इन्होंने फिर वो क्या कहते हैं कि साड़ी गल हो गई है, तो हो सकता है ये उसी बात पर डटे हुए हूँ। फिदा भाई मुझे समझ नहीं आया आपका सवाल वैसे। मैंने कहा कि मैं मुतमिन हूँ रूस, यानी कि तकरीबन 40 मुस्लिम भाई, मैं पॉइंट की एक बात करना चाहता हूँ आपके ऊपर। काफ़ी अरसे बाद अमेरिका काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान ने किसी वज़ीर आज़म ने दौरा किया था अमेरिका का, वो कामयाब। उन्हीं दिनों में जर्मनी भी दौरा कर चुका था, फ्रांस भी दौरा कर चुका था। 10-10 फुट लंबा, 15-15 फुट लंबा वो टेबल होता था, क्योंकि कोविड भी थी। लेकिन खान साहब को भी कोविड के मुल्क से ही आया था ना, पाकिस्तान में भी तो कोविड ही थी, लेकिन सेम टू सेम चेयर थी, छोटा सा एक टेबल था जो फॉर्मेलिटी के लिए होता है किस्म का, तो बहुत अप्रिशिएट दिया गया, बहुत इज़्ज़त की गई है। तो खान साहब ने भी बहुत ज़बरदस्त, तुझको पता है इसके आदमियों को तो मैल करना तो खान साहब को आता है ना। तो लेकिन ये जो चाइना, हो सकता है इसने कोशिश की और रूस ने भी कोशिश की हो, लेकिन जब यजीद हद से ज़्यादा गुजर जाए ना, तो मैं कहता हूँ टोटल करबला भी उसकी मिन्नतें करे ना तो वो नहीं मानते। जी ऐसे ही है बिल्कुल फिदा भाई, ऐसा ही है। वो कहते हैं ना, वो क्या एक गाना नहीं था वो कि बचपन की मोहब्बत को दिल से ना जुदा करना, तो वो मोहब्बत नहीं चढ़ी ना रूस वाली। वो जो बाकियों को तो उसने बड़े टेबल पे बिठाया, खान साहब को इज्जत अफसाई की, अपने साथ बिठाया, लेकिन यहाँ फौजियों ने वो मोहब्बत परवान नहीं चढ़ने दी। इंशाल्लाह मुस्तकबिल में रूस के तलका जब यहाँ अवामी हुकूमत आएगी, मामला उनके साथ। जी जी लेबर एक सेकंड, फिदा एक सेकंड, खत्म करने लगा। मैं वैसे मैं काम पर हूँ वैसे, क्योंकि मैं अब चाय पी रहा हूँ, मैं जिस मर्जी रोड पर हूँ, जब मेरे पास चाय का कप होता है ना, तो मैं पकड़ कर, मैं जो सीनियर होता है उससे जवाब यही मांग लेता हूँ कि खान साहब जिस तरह कुर्बानी दे रहा है, जिस तरह हम सब मेहनत कर रहे हैं, वकील, एक रेडी वाला भी मेहनत कर रहा है, एक रिक्शे वाला मेहनत कर रहा है, एक फाइनेंस, एक टाइटी, हर शोबे का इंसान मेहनत कर रहा है अपनी अपने इल्म के हिसाब से। क्या इस जुल्म भी आपके सामने है, इंसाफ भी आपके सामने है। क्या जो पाकिस्तान की जो ख्वाहिश है कि खान साहब एक बार बाहर आए, वो कुर्सी पर नहीं बैठना चाहते, वैसे अडयाला से बाहर आ जाए, बस वो तो इतना ही काफ़ी है। तो उम्मीद है, क्योंकि जो चाय का कप है इसका तुझको पता है कि क्या कदर है। यार फिदा, आपको बड़ी परेशानी है यार, थोड़ी बहुत हमारे तलकात भी हैं एस्टेब्लिशमेंट में, हम ले आएंगे यार खान साहब को बाहर, ना तुम फिक्र करो इंशाल्लाह। लेबर भाई आपका क्या सवाल भी खत्म, मैं मुतमिन हो चुका हूँ आपकी बात पर। लेबर भाई सारा दिन ले लो, मैं नहीं बोलता। फिदा भाई कुछ और कहना है आपने? फिदा भाई नहीं, उन्होंने नहीं बोलना। लेबर भाई चलो, अभी हमें एक और भी भाई मिल गए हैं, इनका भी नाम ऐड कर लो उसी भाई का। जब एयरपोर्ट पे हमें पकड़ेंगे तो हमने मानी भाई के बोलेंगे ये ओसी भाई थे सर, ओसी पीछे हमारे ओसी भाई थे। तलकात बहुत है, टेंशन नहीं लो आप लोग। मानी भाई, वो सवाल आप रखे जो हम बात करते थे ना जिसके ऊपर, वो ओसी भाई से जरा वो सवाल रखे जरा आप। अच्छा ओसी भाई, हम लोगों ने ना एक थोड़ा सा ना, देखें हमारी पार्टी के अंदर ना तंजीम साजी बहुत कमज़ोर है, ये हमारे बहुत वीक है। क्या ख्याल है कि हमें इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा इन्हीं दिनों के अंदर, एक आध दिन के अंदर अंदर इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करना चाहिए, और ऐसा तंजीम साथी को मजबूत करना चाहिए कि जो हम लोग यानी कि डोर टू डोर भी होके वर्क कर सके, और थोड़ा से हम देख सके कि कौन से हमारी लोग जो ऐसे हैं जो कि मुनाफिक हैं। सबसे पहले ना, आज हम शाम को भी इस पे मानी बात कर रहे थे, जहां तक एस्टेब्लिशमेंट के तलकात पे मैं पहले थोड़ा सा, अगर आप पाकिस्तान जाएंगे ना तो चले, मैंने कहा थोड़े बहुत तलकात है, मिसाल के तौर पे अगर खुदा न खास्ता पकड़े भी गए तो अगर बाकियों को उन्होंने 5-5 छितर मारे तो चले आपको 2 काम लगवा देंगे। तो नहीं, 3 ज्यादा लगा लेंगे, मैं मजाक कर रहा था, आपका नाम लिया मजाक कर रहा हूँ, कहने का मतलब है
का जो प्रिंसिपल स्टैंड है ना जनाब, हाँ साहब, ये 2-3 चीज़ें अगर 5 मिनट में मान लेना कि ठीक है यार, जो तुम्हारा ये डिज़ाइन है इस पे चलाएं, तो वो बस खान साहब के साथ गुडी गुडी हैं सारी ये। हाँ साहब, इस वक्त सिर्फ इस चीज़ के लिए इस चीज़ की सज़ा उनको दी जा रही है, आज़ाद खारजा पॉलिसी की सज़ा खान साहब को दी जा रही है। आज़ाद खारजा पॉलिसी वही है, फिर ये इसराइल है, उधर इंडिया है, इधर अफ़गानिस्तान है, उधर चाइना है, पाकिस्तान को इस्तेमाल करना है, ये पूरा एक डिज़ाइन है। अब जो आपके फ़ौजी हैं, नवाज शरीफ हो गया, जरदारी हो गया, ये सारे दे आर ऑन द सेम पेज, यानी कि ये एक पूरा डिज़ाइन है जिसके तहत ये पूरे का पूरा सिस्टम या इंस्टॉल किया जा रहा है। ठीक है ना, ये बार बार हम बात करते हैं। अच्छा, दूसरी जो है ना, आपने जो बात की है, हम इस पे शाम में ये बात हो रही थी हमारी कि देखें, जो पार्टी है ना, पार्टी को इस वक्त जो मुश्किल हालात का सामना है, इसमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है लॉयल्टी। यानी आपको यहाँ पे अब वो लोग चाहिए जो वफाशुआर हों। ठीक है ना, अभी भी देखें ना, कोर कमेटी के ऊपर भी उंगलियां उठाई जा रही हैं, तो आपको लॉयलिस्ट चाहिए। बहरानों के अंदर या जो ताकत की ग़ुलाम गर्दिशें होती हैं, ताकत की ग़ुलाम गर्दिशों के अंदर सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो करेंसी होती है वो वफादारी होती है। यानी कि यू नीड द मोर लॉयलिस्ट पीपल अराउंड ये। तो ये वो जो है, ये जो लॉयलिस्ट लोग हैं, इनको आपने, यही आपका असासा है, यही आपकी तंजीम होगी, यही आपके तंजीम साजी का सारा निज़ाम बनेगा, यानी नज़रियाती और लॉयलिस्ट। लेकिन इसके लिए अब आपने ये करना है, मसलन सवाल हम ये कर रहे थे कि देखें, जैसे अरशद शरीफ ने शहाद एक कौम के लिए, इस स्टैंड के लिए, इस नज़रिए के लिए, इमरान खान की सोच के साथ खड़े होकर जो कुर्बानी दी वो सारी दुनिया के सामने है। लेकिन जब इन्होंने टिकटें तकसीम की तो आया आपने, जो उनकी बेवा हैं जवेरिया सदीक, वो बड़ी पढ़ी लिखी और बड़ी एक्टिव सहाफ़ी हैं, आया आपने कोई टिकट की पेशकश उनको भी की? बिल्कुल नहीं की। ठीक है, आपने इमरान रियाज की तरफ आपने कुछ किया? नहीं किया। ठीक है, जिले शाह था, उसको कोई, उसके घर वालों को आपने कोई टिकट दी? नहीं दिया आपने। जिन्होंने बाकियों ने कुर्बानियां दी, आपने दिया? नहीं दिया। इस तरीके से आप एक, जिसे आप कहते हैं एक नज़रियाती कम से कम जमात तो आप नहीं बना सकते। ये जो 1% लीड कैप्चर सिस्टम जिसको आप कहते हैं कि 1% लोग हैं जिन्होंने, एक वो असद उमर था और दूसरा उसका भाई, वो पता नहीं क्या था, वो था। ठीक है ना, अभी जैसे फवाद, हसन फवाद है, वो इसका नवाज शरीफ का और शहबाज शरीफ का जो है फेवरेट बॉय है, उसका भाई रऊफ़ हसन आपका इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है। ठीक है, तो ये जो एलीट है ये ही इक़्तिदार में रहती है, चाहे इमरान खान साहब का नज़रिया जीत जाए या नवाज शरीफ का जो पैसा है हराम का कमाया वो जीत जाए या फौजियों का डंडा जीत जाए, इन्होंने ही दाएं बाएं हो के आना होता है। ये वो सिस्टम है, और उसके साथ साथ जो मरूसी सिस्टम है जिसको ख़त्म होना चाहिए, हम तो समझते हैं। तो आप सबसे पहले, जो अगर टिकटें भी होनी चाहिए थी, सबसे पहले तो कुर्बानियाँ जिन्होंने दी, शहादतें जिन्होंने पेश की, वो, उसके बाद जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जेलों के अंदर डंडे खा रहे हैं वो, उसके बाद फिर जो नीचे ग्राउंड के ऊपर जद्दोजहद कर रहे हैं वो, उसके बाद ये जो ऊपर ये पेशावर सियासतदान है ना, जिनका सदियों से यही पेशा है, जेड़ा जिते उसे नाल। ठीक है, इनको, और मरूसी, मैं बादशाह, मेरा बेटा भी बादशाह हूँ, मेरा पोता भी बादशाह, ये वो चीज़ है जिसको हमें इससे आउट करना है। ठीक है ना, तो बिल्कुल तंजीम साजी होनी चाहिए, लेकिन जो लोग पार्टी के साथ लायल हैं, जो लोग डेडिकेटेड हैं, जो लोग नज़रियाती हैं, जो तन मन धन मार रहे हैं, उन्हीं को इक़्तिदार भी देना चाहिए। वही प्राइम कैंडिडेट्स होने चाहिए, वही प्राइम बेनिफिशरी होने चाहिए इस निज़ाम का, वजारतें, सेनेटर, ये वो उनको। ठीक है, ये नहीं कि डंडे एक खा रहा है और ऊपर जनाब आपने कोई और लाकर बिठा दिया, जैसे ही इक़्तिदार ख़त्म हुआ है उसने लोटा बनना, वो भाग गया। राइट जी, ओवर टू यू। नहीं, अभी देखें, ये तो टिकटें तो अभी निकल गया, ये तो हमारे हाथ से ये चीज़ तो निकल गई। अब तो इसके ऊपर हम बात भी करेंगे तो फ़ायदा नहीं है। लेकिन अभी मैं कहता हूँ कि जो अभी हमने इलेक्शन जीतना है, इलेक्शन जीतने के बाद भी ये हमें इक़्तिदार में आने देते हैं, नहीं आने देते, जो मंडियाँ लगनी हैं,
ان کی روک تھام کے لیے ایک تنظیم بننی چاہیے اپنے اپنے علاقے میں. مثال کے طور پہ میرا جو کہ سٹی ہے یا میرا علاقہ ہے اس میں نے 100 بندے کا گروپ بنا لیا. اس 100 بندے میں نے دیکھنا کہ وہ جو آپ نے ابھی کہا کہ کون بندہ نظریاتی ہے اور مخلص ہے, چاہے وہ چودھری کا بیٹا ہے, چاہے وہ راجہ ہے, چاہے وہ کوئی کمی کا بیٹا ہے, ڈزنٹ میٹر. اس کو ہم نے نہیں ڈسکس کرنا. جس کے اندر اس چیز کی یعنی کہ ہمت ہے ان لوگوں کو 100 بندے کو اپنے ساتھ چلانے کے بھی اور ان کے ساتھ ان کو ایک ساتھ رکھنے کی بھی. اور ایسی کرنے سے یہ ایک ہوگا فائدہ ہمیں ہوگا کہ ہم الیکشن میں کمپین بھی کر سکتے ہیں. دوسرا ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ جو ہمارا, کیونکہ میں ایکٹیو ہوں, میں اپنے علاقے میں ایکٹیو ہوں, تو جو میرا ادھر کینڈیڈیٹ کھڑا ہے نا وہ بھی اس کے ساتھ 5% چلو کچھ نہ کچھ تو لائل ہوگا ہی نا. اس کو اس کی باتیں بھی پتہ چل جائے گی کہ یہ بندہ سوچ کیا رہا ہے, کیا یہ کرنا چاہ رہا ہے. کچھ نہ کچھ تو 5% ہی صحیح, لیکن ہم لوگوں کو پتہ چل سکے گا. دوسرا یہ ہوگا نا, ایسے گروپ بنے ہوں گے نا, کل کو اللہ نہ کرے کبھی ہمیں کسی بھی چیز کی تنظیم کے لیے اپنے پارٹی کے لیے نکلنا بھی پڑے گا. ٹھیک ہے, یہ میں ایک اپنا میں اور یہ نا لیبر بھائی نے اس چیز کا نا ڈیزائن بنایا کہ کل کو دیکھیں اگر ہم کال دیتے ہیں ایسے ہر علاقے میں ہر محلے کے اندر ایسے لوگ ہوں گے نا 100 کی بھی, اگر ہم لوگوں نے ایک اپنی یعنی کہ تنظیم سازی کی ہوگی, ہم لوگوں نے ان میں سے 100 بندے میں ایک ان کا لیڈر بنایا ہوگا. کل کو اگر ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے یعنی کہ احتجاج کرنا ہے ہر علاقے کے, ہم ان لوگوں کو صرف کہیں گے, ہم پبلک کی آ کے یہ اعلان نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, اس سے یہ ہوگا کہ ایک ساتھ ہر سٹی سے لوگ بھی نکل آئیں گے. آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بڑی زبردست مانی بھائی, کل بھی آپ نے بہت اچھی ایک بات کی تھی کہ یہ جتنے لوٹائزم کا شکار ہونے سے بچنے کے لیے آپ نے بڑی اچھی ایک تجویز دی تھی کہ ان کو پبلک کے اندر ان سے حلف لیا جائے ہر حلقے کے اندر کہ آپ کو ہم اگر اپنا ووٹ دیتے ہیں, یعنی ہم آپ پہ اگر اعتماد کرتے ہیں تو آپ ہمارے اس اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے. ٹھیک ہے, اچھا قدم ہے. بہرحال جب یہ بکنے پہ آتے ہیں ہر یہ بک بھی جاتے ہیں, تو یہ بھی آپ نے بہت اچھی بات کی. جو آپ کا سجیشن ہے کہ چھوٹے چھوٹے یہ گروپس جو ہیں وہ بنائے جائیں, ان کو ایکٹیویٹ کیا جائے, اور بعد میں جب پراپر آفیشیل تنظیم سازی کی جائے تو ان سب کو وہاں پہ انڈکٹ کر لیا جائے. آئی ایم 110% ایگریڈ ود یو, نتھنگ ٹو سے بیونڈ دس. ہاں, ایک چیز صرف میں اس میں ایک اور چیز ایک کمپوننٹ ایڈ کر دیتا ہوں کہ دیکھیں جیسے ہم کہتے ہیں نا نظریاتی ایک ہوتا ہے کارکن, ایک جو ہوتا ہے وہ بلدیاتی کارکن ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, گلی نالی والا کارکن ہوتا ہے جس نے اپنی 150 کی دہاڑی لگانی ہوتی ہے, ایک نظریے کے لیے کھڑا ہوتا ہے. تو جو پارٹیاں یا جو سسٹم نظریاتی ہوتے ہیں وہ تا قیامت ہوتے ہیں, یعنی کہ ان کی موت نہیں ہوتی. جو بلدیاتی ہوتے ہیں, گلی نالی والے ہوتے ہیں, جیسے یہ نواز شریف کا آپ نے دیکھا نا, جب سے اقتدار سے ختم ہوتا ہے تو یہ پٹواری یہ کتوں کی طرح ختم ہی ہو جاتے ہیں. یعنی کبھی کہیں آپ نے پٹواری دیکھا ہے پھر کسی جگہ پہ؟ آج کل دیکھیں اب ہار آئی ہے نا, یعنی وہ انہوں نے یہ بیانیہ اپنایا ہوا ہے کہ ساڑی گل ہو گئی ہے, یہ دیکھیں آ گئے ہیں سارے. ٹھیک ہے نا, یہ بیسیکلی اس کے نواز شریف کے وفادار نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ پچھلے سال ایک دفعہ جب مجھے فوجی اس کو ٹھوڈے مار رہے تھے نواز شریف کو, تو ایک جلسے میں اس نے کہا جی کہ کسی نے پتہ نہیں نیچے سے نعرہ لگایا کہ قدم بڑھاؤ نواز شریف, ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو نواز شریف نے کہا کہ پہلا بھی تسی کہن دے سو, میں پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں سی. جب مشرف کے زمانے کی بات ہوئی تو اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ سارے ابن الوقت ہیں, یہ جو ساتھ میں آئے ہیں. یہ کسی نے زیادہ سے زیادہ کسی نے کوئی بھرتی کروانی ہوگی, کسی نے کوئی ٹوٹی نلکا لگوانا ہے, کسی نے کوئی نالی سولنگ کا کوئی ہے, یہ وہی کلاس ہے. لیکن جب آپ نے اس میں ایک عظیم ایک لازوال ایک جماعت کو بنانا ہے, یہ جو ایک ایسی جماعت جو ایک نظریاتی جماعت ہوگی جو ایک نئے پاکستان کو تعمیر کرے گی, یعنی آنے والا مستقبل جو ہے پاکستان کا, اس پاکستان کے مستقبل کو جو آرکیٹیکٹ کرے گی جو جماعت, وہ میٹیریلزم سے اوپر ہونی چاہیے وہ جماعت. ٹھیک ہے, ایک انسان ہوتا ہے نا, اس کا ایک بشری حصہ ہوتا ہے, یعنی میٹیریل سینس ہوتا ہے اس کا, جس میں آپ نے روٹی بھی کھانی, آپ نے کھانا کھانا, آپ نے بول بازار کی اپنی ضرورت پیش کرنی, آپ نے سیکس کرنا, آپ نے بچے بنانے, یہ آپ کی جو بشری ضرورتیں جسے آپ کہتے ہیں اینیملسٹک نیڈز ہوتی ہیں, آپ کی جو حیوانی جبلتیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے ایک اس کا ایک حصہ رکھا ہے جسے آپ کہتے ہیں اس کا وہ روحانی حصہ ہوتا ہے.
ٹھیک ہے نا, جس کا نظریے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, جس کا عقیدے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, جس کا بلیو کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, جو کہ آپ کے اس مادی وجود سے ابو ہوتا ہے, یعنی اس سے وہ بالا حصہ ہوتا ہے. نظریہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ نظریہ اس اسپرچول سپیس کے اندر ہوتا ہے. جب آپ نظریاتی کارکن یا نظریاتی جماعت بناتے ہیں تو آپ نے ان کو اسپرچلی ایڈریس کرنا ہے نظریاتی طور پہ, رائٹ. تو وہ جو ایک کنیکٹیویٹی ہوتی ہے وہ ابو مٹیریل نیڈز ہوتی ہے, وہ ان کو آپ اس طریقے سے برائب نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا, لیکن ہاں صاحب خود تو ظاہر ہے اتنی ماشاءاللہ ولی ہیں اللہ کے, میں تو سمجھتا ہوں ظاہر ہے وہ تو ان چیزوں سے اوپر ہی ہیں, لیکن پی ٹی آئی انفارچونیٹلی 27-28-30 سالوں سے کوئی وہ نظریاتی جماعت نیچے تنظیم سازی کی حد تک نہ وہ بن نہیں سکی. تو یہ بہت بڑا گیپ ہے جو فل ہونا چاہیے, میرے نزدیک تو ہونا چاہیے. اب کہاں سے اس کو کرنا ہے, اس کا چارٹر کہاں سے شروع ہوگا, کہاں سے اس کی ممبرشپ ہوگی, اس کے جو اسٹڈی سرکل بنانے ہیں یا لوگوں کو اس میں انڈکٹ کرنا ہے یا ان کو اویئرنیس دینی ہے